नमस्कार बच्चों, today's my video lesson is on general principle and process of isolation of element. So friends, you are using many metals in your home as for example iron, copper, aluminium. कभी आपने सोचा है कि ये सारे जो मेटल्स हैं ये कहाँ से आते हैं? तो आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा बच्चों, इन क्लास 8 और 9, 10 कि मेटल्स जो भी आते हैं वो अर्थ क्रस्ट से आते हैं और अर्थ क्रस्ट से जो भी मिलते हैं उनको यू कैन से रॉ मेटल और मिनरल. तो बिफोर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स related to general principle and process of isolation of elements. So you see, my subtopic is metallurgy and some important terms are there and you have seen in previous class also. So this is first one is mineral, the naturally occurring chemical substance in the earth crust which is obtained by mining. वैसा नेचुरली occurring chemical substances, it may be Fe2O3, Fe3O4, CuFeS2 in the earth crust which is obtained by mining. उसको खोद कर निकालते हैं, right? Next term is your ore. Ore, the mineral from which the metal can be extracted economically or profitably. देखो बच्चों, ये दोनों एक ही चीज होते हैं, मिनरल्स एंड ओर बोथ आर सेम, बट ओनली डिफरेंट इज दैट कि द मटेरियल कंटेंट और मेटल कंटेंट इन मिनरल is less and in ore the metal content is more. That's why we are telling here the mineral from which the metal can be extracted economically. कब इकोनॉमिकली होगा? जब बहुत सारे मेटल का एक्सट्रैक्शन कम कॉस्ट में हो सकता है. एज फॉर एग्जाम्पल यू सी, मैं एक चीज दिखाता हूं कि सपोज ए मिनरल इज देयर, ए मिनरल ऑफ आयरन. आयरन का क्या है भाई? मिनरल है. एंड वी आर एक्सट्रैक्टिंग आयरन. आयरन निकाल लिया भाई, 1 kg ऑफ आयरन, 1 kg ऑफ आयरन एंड इट्स कॉस्ट इज ₹1000, राइट? एक सेकेंड मिनरल लिया, एक दूसरा मिनरल लिया, मिनरल and same Fe, and so 1 kg of Fe is extracted through this mineral and its cost is ₹5 only. So this is economically, अगर हम बाजार में बेचेंगे तो इसमें प्रॉफिट होगा, ये तो कोई खरीदेगा नहीं, राइट? क्या हो सकता है इसमें? कि डेफिनेटली इस मिनरल में iron percentage of iron is more percent, right? So on the basis of that you can say all ores are mineral. सभी ores क्या है भाई? मिनरल हो सकते हैं, but all minerals are not ore. The statement is very true, right? अब हम देखते हैं कुछ important ores, some important ores, right? So first of all you see ores of aluminium. Its name of ore is, ये name of ore है भाई, name of ore. Name of ore is bauxite, we call it bauxite, and its chemical formula is Al2O3 and it is also known as alumina. Very lovely name is there, alumina, right? Second ore is of iron, hematite, Fe2O3. It's a diamagnetic in nature. ये डायमैग्नेटिक होता है बच्चों, ये आगे हमें थोड़ा काम आएगा, आप याद रखिएगा इसको. नेक्स्ट ओर इज मैग्नेटाइट, Fe3O4 सॉरी, इट्स ए पैरामैग्नेटिक and also you should know it's a combination of
it's a combination of FeO and Fe2O3, right? It has magnetic behavior, so it comes under paramagnetic, right? Now iron pyrites is there, FeS2 iron pyrites. Ores of copper, this is copper pyrites. You remember this one, CuFeS2, ये चैप्टर में आगे आएगा. Copper glands, Cu2s. Zinc blends, it's a H4 of zinc, ZnS. Chemical name is zinc sulfide, but its name is zinc blend, right? Calamine, ZnCO3, and lead, this is galena, PbS. So these are the important ores. You should remember these ores, right friend? Okay, now next we see next term, that is gangue. This is gangue. The impurities present in ore is called gangue. Which type of impurities is there? तो अर्थी इम्प्योरिटीज हो सकता है, इट में भी सॉयल हो सकता है, सैंड हो सकता है, और एनीथिंग एज इम्प्योरिटीज, राइट? सो गैंग, इट्स अ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर इज कॉल्ड गैंग. एंड नेक्स्ट वन इज योर metallurgy, that I am coming on the topic metallurgy. All the processes involved in the extraction of metal from its ore is called metallurgy. So friends, you know, under metallurgy there are mainly three processes involved. Metallurgy, three processes are involved, you know, and you have seen in lower class also. First one is concentration of ore, concentration or enrichment or purification of ore, right? These are the names you can indicate by concentration of ore, enrichment of ore, purification of ore. And second step is a reduction of metal oxide, right? If you get the metal in the form of oxide, then if you reduce metal oxide, then definitely you will get metal, and this is oxygen. Suppose some oxidizing agent is there, CO, then you will get CO2. We will see later on. Okay, and third one is, देखो बच्चों, जो हमें मेटल मिलता है वो बहुत प्योर फॉर्म में नहीं होता है. सो वी हैव टू रिफाइन इट, इसको रिफाइन करना पड़ता है. सो थर्ड स्टेप इज योर रिफाइनिंग ऑफ मेटल, राइट? रिफाइनिंग ऑफ मेटल. ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, वी विल सी कंसंट्रेशन ऑफ ओर, राइट? ओके फ्रेंड्स, वी सी कंसंट्रेशन ऑफ ओर. सो कंसंट्रेशन ऑफ ओर मीन्स you can say removal of gangue from ore, or you can say removal of unwanted material present in ore, right? So many methods are involved in the extraction of concentration of ore. First one is hydraulic washing. Hydraulic washing. तो दोस्तों देखो, हाइड्रोलिक वॉशिंग कुछ भी नहीं होता. आप ऐसा समझिए कि आपके घर में जब गेहूँ
गेहूं को फ्लोर मिल में ले जाते हैं आटा बनाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, गेहूं को धोते हैं। क्या करते हैं भाई, गेहूं को धोते हैं, किस लिए धोते हैं, उसमें जो अनवांटेड मटेरियल हैं, डस्ट हैं, हस्क हैं, वो सेपरेट हो जाए। सो सेम प्रोसेस इज देयर हाइड्रोलिक वॉशिंग, कि सपोज इन ओर, सपोज सॉइल इज mixed with ore, so you can remove the soil by hydraulic washing. So simply you can say in this process ore is washed with a stream of water, right? We put here ore, this is ore, and that having gangue particle or unwanted material. Now you pour water in that water. So impurities क्या होंगे भाई, impurities removed हो जाएंगे, right? So this is hydraulic washing, you know. And second, हम समझते हैं, आपको समझ आ गई होगी hydraulic washing. Now second is your magnetic separation. राइट। सो जहां भी मैग्नेटिक सेपरेशन की बात आती है, सो डेफिनेटली वन कंडीशन इज देयर कि आइदर और शुड बी मैग्नेटिक सब्सटेंस और गैंग शुड बी मैग्नेटिक सब्सटेंस, राइट फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि दोनों मैग्नेटिक सब्सटेंस हो, दोनों में से कोई एक, आइदर और गैंग शुड बी मैग्नेटिक सब्सटेंस। देखते हैं इसमें कैसे हम करते हैं इसका रिमूवल। माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसमें मैंने एक डायग्राम बनाया है, एंड दिस इज द डायग्राम टू सेपरेट ओर्स फ्रॉम गैंग बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें बच्चों दो रोलर होता है, एक मैग्नेटिक होता है, वन इज मैग्नेटिक एंड अदर इज नॉन मैग्नेटिक, एंड दिस इज कन्वेयर बेल्ट। आप कन्वेयर बेल्ट यहाँ नहीं देखे होंगे, आप एयरपोर्ट में जाते हैं तो जो सामान की डिलीवरी होती है वो कन्वेयर बेल्ट होता है। कैसे उस पर सामान आते हैं, उसी तरह से ओर इसमें जा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ग्राउंड द ओर को हम महीन पीस लेते हैं, एंड इसमें फ्रेंड्स मैंने दिखाया है रेड कलर एंड ब्लैक कलर। सो यू इमेजिन कि ये जो रेड कलर है दिस इज गैंग पार्टिकल एंड ब्लैक कलर इज योर ओर एंड इट इज मैग्नेटिक मटेरियल, इट इज अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट। अगर इसको हम रिलीज करेंगे और ये कन्वेयर बेल्ट अगर इसका मूवमेंट होता है तो इसमें ग्राउंडेड ओर क्या होगा भाई, आएगा, यहाँ आएगा, बिकॉज रेड कलर्ड पार्टिकल इज गैंग एंड इट इज नॉन मैग्नेटिक, तो ये मैग्नेट से अट्रैक्शन नहीं होगा और ये सीधे देखो इस टब में आ गया एंड देयर इज सेपरेशन। ये ब्लैक वाले क्या हैं जी, ब्लैक वाले मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, तो ये इट इज अट्रैक्टेड बाय दिस मैग्नेट and another heap is stored in another container and so on. The ore is separated from gangue. This is your gangue and this is ore. So it's very easier and economical method to separate ore from gangue. And दोस्तों इसमें जो मैग्नेटाइट ore होते हैं, मैग्नेटाइट, इनका सेपरेशन इसी तरह से होता है। मैग्नेटाइट और Fe3O4 मैंने बताया था, उनका सेपरेशन कैसे होता है भाई, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस से होता है। एंड सेकेंड जो मैंने बताया था हेमेटाइट Fe2O3, इसका जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ दिस हेमेटाइट और इज हेमेटाइट और बाय हाइड्रोलिक वॉशिंग, राइट। ठीक है फ्रेंड्स, सो यू कीप इन माइंड दिस इंफॉर्मेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट वी सी नेक्स्ट
types to concentrate ore. Next method is froth flotation process, in which generally lighter ores means it's a ores of copper, that is lighter, or you can say sulfide ores are generally concentrated through this method because sulfide ores are lighter. So sulfide ores. So sulfide ores में मैंने बताया है कॉपर पायराइड्स CuFeS2, इसको हम CuFeS2 इसको कंसंट्रेट हम करते हैं थ्रू दिस मेथड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर यू. इसमें देखो दोस्तों, मैंने एक डायग्राम बनाया है कि देयर इज एक टब होता है एंड ग्राउंडेड ओर और पाउडर्ड ओर आर मिक्सड विथ वाटर. So first of all, first step is your suspension of powdered ore is made with water. वाटर से पहले उसका सस्पेंशन बनाते हैं. इसमें आप देख रहे हो कि एक पैडल लगा हुआ है, रोटेटिंग पैडल इज देयर. एक्चुअली इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस फ्रोथ. एंड इसमें देखो दोस्तों, इसमें क्या हम डालते हैं, इसमें कुछ मटेरियल डालते हैं. क्या डालते हैं भाई? कलेक्टर्स डालते हैं, पॉइन ऑयल डालते हैं, फैटी एसिड डालते हैं. ये क्या करते हैं कि एडिशन ऑफ कलेक्टर्स, इट्स अ स्पेशल नेम इज देयर, कलेक्टर्स. इट इज जनरली पॉइन ऑयल और फैटी एसिड्स. इनका काम क्या होता है? टू प्रोड्यूस फ्रोथ पैदा करते हैं, राइट. अब फ्रोथ पैदा करने के बाद बी एड फ्रोथ स्टेबलाइजर. थोड़ा सा आप इधर देखें. फ्रोथ स्टेबलाइजर. स्टेबिलिटी ऑफ फ्रोथ इंक्रीजेज बाय यूजिंग क्रिसोल और एनिलीन. दैट मीन्स फ्रोथ एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम. नाउ वी सी हियर इन दिस प्रोसेस, ओर जो होते हैं, ओर की वेटेबिलिटी ऑयल के साथ होता है. दैट मीन्स ओर इज सेलेक्टिवली वेटेड बाय ऑयल एंड गैंग पार्टिकल इज सेलेक्टिवली वेटेड बाय वाटर, राइट. नाउ इफ you introduce of you supply air, then definitely froth produces. झाग पैदा होएगा. और झाग में ड्यू टू एडजॉर्प्शन ये जो सल्फाइड ओर होते हैं वो एडजॉर्ब कर जाते हैं ऑन द बबल ऑफ फ्रोथ एंड इट कम्स एबव द सरफेस ऑफ फ्रोथ. ठीक है दोस्तों. एंड इसमें गैंग पार्टिकल कहाँ रह जाएगा भाई? तो गैंग पार्टिकल आपका नीचे बॉटम में ही रहेगा, गैंग पार्टिकल, राइट. अब इस तरह से देयर इज कंसंट्रेशन और सेपरेशन ऑफ ओर टेक्स प्लेस बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस. फिर इसको क्या करेंगे? छान लेंगे. दिस इज स्किम्ड ऑफ एंड यू विल गेट द कंसंट्रेटेड ओर ऑफ यू कैन से कॉपर और सल्फाइड ओर. क्यों करते हैं सल्फाइड ओर? बिकॉज सल्फाइड ओर्स आर लाइटर देन गैंग पार्टिकल. ओके दोस्तों, इसमें एक चीज़ और है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सपोज यू हैव टू सेपरेट टू ओर्स. एज फॉर एग्जांपल सपोज ZnS एंड PbS. टू ओर्स आर प्रेजेंट इन वन ओर. Suppose a ore is a mixture of ZnS and PbS, zinc blende and galena. In that case, suppose you have to concentrate galena. Then what happens? दोनों सल्फाइड ओर हैं, दोनों झाग में आएंगे, दोनों फ्रोथ में आएंगे. तो इस केस में हम लोग एक डिप्रेसेंट का यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? बी यूज डिप्रेसेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. डिप्रेसेंट का काम क्या होता है? इट डिप्रेस्ड आइदर ऑफ द ओर. बट दिस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या करते हैं? बी यूज ए डिप्रेसेंट लाइक NaCN, सोडियम साइनाइड एक्ट्स एज डिप्रेसेंट
and it depressed ZNS. ZNS ऊपर नहीं आएगा, इट इज डिप्रेसेंट बाई NaCN, हेवियर हो जाता है, हेवी बनता है, इसके साथ कंपाउंड फॉर्मेशन होता है एंड दैट बिकम्स हेवियर, सो इट रिमेन्स इन द बॉटम ऑफ टब, राइट। अब इसमें एक्सट्रैक्शन किसका होगा, PBS कम्स विथ फ्रोथ ड्यू टू adsorption of PBS on the bubble. Okay friends, so these are the method to concentrate ore. Now we see in next video. Okay, thank you very much.